All right. So this homework we are going to discuss. Actual vector कौन सा है? A है. तो components कौन से हैं? Ax and Ay. So both added together components should give the actual vector. जो vector के हमने component किए हैं, component को add कर दो तो we should get the original vector. So this should be equal to R. A and B should be equivalent to their components. तो triangle law से forward order, head and tail, we'll see which two vectors are in the forward order. Third vector taken in the reverse order will give us the A. तो A हमें ax and ax plus ay होने के बाद A मिलना चाहिए. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड ऑर्डर में है ax plus a इज इक्वल टू ay. तो ये रॉन्ग हो गया, हमें A मिलना चाहिए, यहाँ पे ay मिल रहा है. तो कंपोनेंट में अगर वेक्टर ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा वो. छोटा ay, देखो ax and ay are the component of the vector A. So they should be smaller in size as compared to original vector. जैसे original vector suppose ये A है, इसके कंपोनेंट छोटे होते हैं, तो ये ax कंपोनेंट होगा और ये ay कंपोनेंट होगा. ay को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना. तो ax plus ay should be equal to A. That diagram, that option will be correct. तो ये तो रॉन्ग हो गया. इसमें क्या है देखो, ये फॉरवर्ड ऑर्डर में कौन से हैं, ये ay plus a. तो इसमें क्या मिल रहा है, ay plus a is equal to ax. This is also wrong. What we should get, this we should get. So whichever option has this equation, that will be correct. Here you see in third equation in C, ax is in forward order with ay, and this taken in the reverse order is equal to a. ये opposite लिया देखो, head and tail है देखो. Can you see head and tail again forward order? This is taken in the reverse order, opposite. अगर if we go like this, like this, ये सब forward order हो गया. But third side taken in the reverse order will give you the resultant. So this is okay. This diagram gives us a is equal to ax plus ay. तो ये correct है. We'll check the D option. ठीक है, D देखते हैं. D में कौन सा दो कौन से सीक्वेंस में, ये वाला है ay है और ये ax भी उसी की सीक्वेंस में. Third one is in the reverse order A. This is also ay plus ax is equal to a. This is also okay. ax पहले लिखो या ax बाद में लिखो. This is also okay. C is okay. D is okay. इसको चेक करेंगे. What about this? This is ax. This is ax plus ay. ठीक है. बट ये वाला जो थर्ड वेक्टर है ये फॉरवर्ड ऑर्डर में चला गया. होना कैसे चाहिए, इधर आना चाहिए. तो इसमें क्या इक्वेशन मिल रही है, क्लोजिंग हो गया, ये पॉलीगॉन क्लोज हो गया. समझ लो ट्राइंगल को हम पॉलीगॉन बोल रहे हैं, क्लोज हो गया. तो ये तो जीरो आ रहा है ना. मतलब कि इसमें क्या इक्वेशन, व्हाट शुड बी द इक्वेशन ऑफ दिस ट्राइंगल. इसमें क्या आ रही है, ax plus ay is equal to minus a. आना क्या चाहिए, प्लस ए आना चाहिए. इट शुड बी अपोजिट लाइक दिस होना चाहिए. दिस इज आल्सो रॉन्ग. व्हाट अबाउट दिस इज राइट और रॉन्ग, बोलिए. ये क्या ठीक है कि इनकरेक्ट है? Can somebody tell me? Last one is right or wrong? So Yeah, it is are you right. there? Right. How can we say it is right? So ax the resultant of ax and ay is vector A. Okay, we can shift this, है ना? We can bring ax here. यहाँ पे लग जाएगा, शिफ्ट कर सकते हैं. तो ay plus ax is equal to a. ठीक है. अदरवाइज वैसे भी हमने कंपोनेंट तो ऐसे ही देखे थे. ओरिजिनल कंपोनेंट्स विल बी one side of the vector, other will be other side of the vector. This is also okay. That's how we started. F is also okay. Triangle law से भी valid हो जाएगा. You bring it here. So this will be ay. ये क्या सा ax है, ax और final vector is resultant vector is a. This is okay. This is also okay. तो आंसर्स क्या है इसके, a, d and f. तो आंसर is okay. I will write it here. Okay.
Answer is यहाँ पे shall I show you answer how they are given? Let me see. Let us see their wordings, how they are written. ये इसका आंसर है, देखो, can you see? इसको यहाँ से ये कट कर देते हैं, पहले वाले का आंसर है. So how they are written? Answer C, D, and F. Components must be head to tail. A must extend from tail of one vector to the head of other vector. तो head to tail component, दो component head to tail है, ठीक है. और क्या लिखा है इसमें? That vector A should must extend from tail of one vector to the head of other vector. That is what we are calling the reverse order. इसको हम लोग reverse order बोल रहे हैं. इन्होंने कैसे लिखा है? A should start from the tail of the one vector and what is it done? A must extend from tail of one component to the head of other component. तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा. क्लियर? इसमें डाउट है किसी को? Anybody has any doubt in this? No problem. Again, I think. Okay, seems to be okay, but you are not responding. Am I audible? Yes, sir. Okay. कोई difficulty है इसमें? So we have to follow the triangle law, that's all. Two vectors in the forward order added together should give us the resultant vector. Resultant vector यहाँ पे A रहेगा. We should get AX plus AY should equal to A. Because जिसके कंपोनेंट किए हैं, जो कंपोनेंट है उनको ऐड करने से हमें ओरिजिनल वेक्टर मिलना चाहिए. That's all. That's what we should keep it in mind. Got it? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या क्वेश्चन? लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट वन. तो ये सब दिस ऑल वी हैव डन इट. ये भी डन. दिस इज आल्सो डन. This was done in the class. ये table भी I told you to remember. And this was also this. What is the answer of this question? Can you tell me the answer of this question? 10 Newton. Okay, 10 Newton is the answer coming. What is the angle between the two vectors? Formula use this. 120 degrees. Yeah, tail and tail join करेंगे. इसको आगे shift कर दो. Shift it here. Now this angle theta will be 120 degree. This is 10 Newton. So 10 Newton forces acting on the particle at angle 120. Resultant should be 10 Newton only. ये हमने we have done it yesterday in two previous classes. We have discussed this point. If you don't remember, no problem. So देखो इसको what we have to find out the correct angle. Then we have to put it into the proper formula. Angle इसमें indirectly it was given. Just let me make it some more bigger. Now you can see it properly. देखो angle is 120 and formula required is this one. R is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. This will be a vector. इतनी shift होने के बाद वो किसी को भी a ले सकते हैं. This will be a vector. This 10 Newton is. This you can take it a. This you can take it b. Any of them you can take a and b. So a and b both are 10 Newton. So 10 square plus 10 square plus 2, 10 into cos 120 is minus half. So this 10 square will go. We'll be left with root of 10 square. That's nothing but a 10. All right. So this can be important question because angle is indirectly given. No problem. Kshitij in the waiting room. How to enter? उसको कैसे करना है? Is it possible in my with? Okay, I can admit yes. ठीक है. All right.
Okay. Clear to everyone? Answer is 10 Newton. Are you there? तुम लोग हो लाइन पर? Let me check. Yes. हाँ. Okay. So this is over. Now, this by discussing the previous class these points. What about this question? इसका आंसर क्या है? बोलिए. C. C. कैसे C? रूल क्या है इसका? Any two sides, any two numbers. ये फर्स्ट टू ले लो. 2 plus 4 should be less than or equal to 6. क्योंकि इनका डायरेक्ट एडिशन मैक्सिमम 6 हो सकता है. एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस कितना है इनका? 2. कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनका मैक्सिमम पॉसिबल उनका प्लस हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल उनका डिफरेंस हो सकता है. तो इसमें देखो, इफ वी ऐड 2 and 4, it is maximum is 6, but this is giving 8. तो 8 जो है, 8 cannot counteract with it. अगर हमने दोनों फोर्सेस इस तरफ लगा दिए, 8 फोर्स अगर हमने अपोजिट लगा दिया, ये 8 न्यूटन हो गया और ये तुम्हारे 6 न्यूटन हो गए. तो 6 न्यूटन cannot balance 8 न्यूटन. तो 0, we cannot get 0. लेकिन हमें क्या चाहिए? 0 चाहिए. सेम थिंग इज हियर आल्सो. मैक्सिमम पॉसिबल ये कितने 12 न्यूटन को बैलेंस कर सकता है. अगेन, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई एम गेटिंग कॉल. हाँ, ठीक है. तो ये इसमें क्या होगा? देखो, ये 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 कैन बी बैलेंस बाय 1. बोले कैसे? 1 and 2 को अपोजिट ले लो, 1 न्यूटन और 2 न्यूटन. तो कितना बचेगा? 1 न्यूटन इस तरफ बचेगा. ये वाले 1 को फिर हम अपोजिट लगा देंगे, तो नेट फोर्स विल बी 0. मतलब रूल क्या है इन दोनों का? ये जो प्लस 1 plus 3, 1 plus 2, एक मिनट, इसको ए एंड बी ले लो और दिस विल बी आर. तो 1 plus 2 शुड बी लेस देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, उनका डिफरेंस 1 है. तो जो फाइनल जो मिल रहा है 1 है, वो इसके अंदर इसकी रेंज में है. यहाँ पे लिखूं मैं रूल? ओके, देखो, a plus b, यहाँ पे देखो ऐसा है, a plus b, इनका जो वेक्टर सम होगा, दैट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू उनका जो इतना, और डिफरेंस ग्रेटर देन a minus b. ये रूल लग रहा है इसमें, है ना? तो इसमें देखो 1 plus ये दो वेक्टर का जो वेक्टर सम है, ये कितना कितना आएगा? इट कैन बी 3 और लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1. ये 1 आएगा, इससे बैलेंस कर सकते हैं. इसका जो इसकी रेंज में है ना, तो उसका प्लस माइनस के अंदर होना चाहिए. तो दिस इज इन द रेंज. इसमें 1 and 2 को, 1 and 2 का मिनिमम पॉसिबल 1 होगा, इस 1 के साथ बैलेंस कर सकते हैं. व्हाट अबाउट लास्ट वन? इज इट ओके? इसमें ऐड कर दो 0.5 plus 1, 1.5, मैक्सिमम 1.5 होता है. ये 2 को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसके प्लस से बाहर निकल गया ये, तो वी कैन नॉट बैलेंस दिस. तो ओनली सी इज ऑप्शन करेक्ट. Who got C? और किसका C आया था? Can you explain your way? Kshitij, you told C. What is Same your way. explanation? Explanation क्या होगा? कुछ और अलग एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप? तो मैंने देखने से वही ही पता 1 लगना minus चाहिए. 1 और 1 plus 1 Okay. किया, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल. हाँ, तो देखने से ही पता लगना चाहिए. इनको देखो ऐड कर दो. 6, मैक्सिमम 6 हो. थर्ड साइड जो है ये वाली मैक्सिमम 6 हो सकती, मिनिमम 2 हो सकती. तो अपर लिमिट क्रॉस कर गया ये. इसमें भी अपर लिमिट क्रॉस कर गया. इसमें 3 है मैक्सिमम, उससे कम है ये वाली साइड. तो लोअर लिमिट का भी चेक करना पड़ेगा. लोअर लिमिट कितनी हो रही है? 2 and 1 का डिफरेंस कितना है? 1. तो लोअर लिमिट के अंदर है, अपर एंड लोअर लिमिट के अंदर है ना.
अपर लिमिट कैसे डिसाइड होगी, दोनों को ऐड कर दो, तो 3 से कम है, ठीक है 3 से कम है, बट हमें लोअर लिमिट भी देखना पड़ेगा, है ना, कि भाई इनका जो डिफरेंस है 2 - 1 1, तो डिफरेंस जो है उस वो उतना उतने तक लोअर लिमिट हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे 0.5 लिख दूं तो अपर लिमिट कितनी है 3, ऐड कर दो दोनों 3, तो 3 से कम है, बट ऐसा तो नहीं वो लोअर लिमिट कितनी होगी डिफरेंस 1 होगी, दोनों का डिफरेंस 1 है, उसके बाहर उससे कम ना हो जाए, तो उससे कम हो गया, इसमें यही हुआ है देखो, इसमें आपको अपर लिमिट से ही हमें मिल गया यहाँ पर। अगर हम ये दोनों लेंगे तो अपर लिमिट 3, बट लोअर लिमिट चेक करनी पड़ेगी हमें, 1 से कम ना हो जाए, इसमें 1 से कम हो रहा है, तो एनी टू यू कैन टेक ए एंड बी, इसको ए इसको बी ले सकते हैं, या इसको ए एंड इसको बी ले सकते हैं, तो ये आर हो जाएगा, है ना। तो कोई ऐसा नहीं कि फर्स्ट 2 वेक्टर ही हमें ए बी लेना है, तो इसमें हमने इनको देखा, प्लस किया 3 हो गया, ठीक है, तो थर्ड वन इज शुड बी 3 और लेस देन 3, बट हमें लोअर लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी, इनका डिफरेंस कितना है 1, तो 1 या 3 के बीच में होना चाहिए, तो 1 है, ठीक है। इसमें जो है फिर से इसमें वही हो रहा है, 0.1 प्लस 0.5 प्लस 1, इट इज 1.5, तो 2 इज आउट ऑफ दैट, मोर देन दैट हो गया, तो ये भी रूल आउट हो गया, ये भी रूल आउट हो गया, ये भी, ओनली सी इज करेक्ट। तो mod of a plus b should be less than or equal to a plus b or greater than a minus b, ये रूल है। ए प्लस बी किसको ले रहे हैं, हम लास्ट वाले को, ये प्लस बी ले रहे हैं, इसको ए ले रहे हैं, इसको बी ले रहे हैं। ऑलराइट, चलो आगे देखेंगे। Shall I move on to the next one? Yes, sir. Vector subtraction में we have seen the resultant of vector subtraction, उसका एक क्वेश्चन दिया था आपको कि a plus b, if a plus b is equal to a minus b, तो what is the angle between them, तो a plus b का फार्मूला लगाओ, इसमें प्लस आता है बीच में और इसमें माइनस आता है, दोनों के फार्मूले लेना है आपको, बोलिए a plus b का फार्मूला क्या है, Root a square plus b square plus 2ab cos theta what about this, minus 2ab. दैट्स ऑल। तो इनको इक्वेट कर दो, इक्वेट करके सॉल्व करना है बस, दोनों के फार्मूले लिख के इक्वेट करके सॉल्व किया, वैसे तो हमें देखने से ही पता लग गया था आंसर क्या होगा, बट लेट अस सॉल्व इट एंड सी। ओके, वी आर इक्वेटेड देम, इक्वेट कर दिया, देन उनके फार्मूले लगा दिए, प्लस वाले का ये होता है, माइनस में यहाँ पे माइनस आता है, स्क्वायर कर दिया, √2 जगह ए स्क्वायर बी स्क्वायर गेटिंग कैंसल, ये टर्म इधर ले आएंगे, इट विल बी 2ab cos theta is equal to 0, therefore cos theta is 0, since a 4 cannot be 0, a cannot be 0, b cannot be 0, तो cos theta has to be 0, it means 0 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 लिख सकते हैं, it means theta is equal to 90 degree, तो right answer is 90 degree। clear, आ गया था ये, would you get this everybody, note down। So this is frequently asked question again, this was there in some of the papers, JEE में कि NEET में था, it was asked in NEET last year or last to last year, it was there। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, you should know the answer directly, है ना, these are the frequently asked question, you can save your time in these questions। Shall I show you with the diagram, देखो इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं, let's do with the diagram। देखते डायग्राम से, देखो ऐसा, ये हो गया नोट 10, या
देखिए डायग्राम से कैसे आएगा, देखो ये आपका वेक्टर ए है, दिस इज बी, है ना। इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। जस्ट लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस एक्स्ट्रा थिंग्स। ओके, तो here is the vector A, here is the vector B, and here is the minus B. So when they are at 90 degree, तो ये 90 degree है, A and B का एंगल थीटा 90 डिग्री है, तो this इनका रिजल्टेंट will be hypotenuse, and this side also A minus B का भी सेम होगा, because length जो इनका minus B is mod of this and both are equal, because हमने B को ही टर्न किया इधर, है ना। So these things, this will be equal to this. With the diagram itself, you can see A plus B mod, which is the hypotenuse of this A plus B, and ये भी mod, इसका ये भी hypotenuse है. This side only directions are different, but magnitudes are same. You can see it with the. This is possible. कब? When theta is 90 degree. दोनों के बीच का एंगल कैसे मेजर करते हैं? टेल ज्वाइन करके इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा सा बाहर इस तरफ, ये थीटा एक्चुअल एंगल ये आएगा यहाँ पे, ये जो अंदर से नहीं लेंगे, इसको बाहर करके यहाँ से लेंगे, देखो एक्सटेंड करो, टेल एंड टेल ज्वाइन करो, ये ऐसे आएगा ना, तो ये एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 90। गॉट इट? तो 90 डिग्री पे a plus b is equal to a minus b in magnitude, और if angle further goes up, theta is greater than 90, तब क्या होगा? a plus b will keep decreasing now, a plus b ऐसे कुछ हो जाएगा, a plus b will be छोटा, और माइनस इसका इधर आएगा माइनस b, और a minus b will be बड़ा, bigger one. Got it? If angle goes up, theta goes up, then 90 degree, in that case a minus b will be bigger, mod of a minus b will be bigger. Okay. If 90 है तो both are equal. Vectors need not to be equal. A and B need not to be equal. है ना? Suppose okay ऐसा देखते हैं, चलो let us do it with. Suppose vector A is of 3. Okay, देखो इस तरह से समझो. If vector A is of 3 unit and B is 4, so A plus B will be 5. है ना? और here also ये आपका ये जो है इधर लेंथ इसकी अभी भी 4 रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगेन दिस विल बी 5, this will also be 5, this will also be 5 if A and B are 3 and 4 in magnitude. Got it? Convinced with the diagram also or with the formula also? बोलिए. Am I okay? Am I Yes, sir. live? Okay, चलो. So this is also clear. I hope everybody is convinced with this. All right, shall I move on to the next one? Be slightly quick. Yes, sir. ठीक है. और ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ा इसमें you have to just think your way. Question number 6 of NCERT book, we can discuss it in the next class. 6.1 4.6 chapter number 4 में है ये, and question number 6 and this one 7th also. This we can discuss tomorrow. Just go through the questions, try yourself. We'll discuss it tomorrow, not now. 6 and 7 chapter number 4. Okay, this question is also easier question. Let us see what is this. Okay, you do it yourself. This is just easier one. So take it in homework and do it and send it to me. We will discuss it tomorrow. Component की question. कौन सा component positive होगा, कौन सा negative होगा.
साइन लिखना है, प्लस या माइनस, दैट्स ऑल। दोनों पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव तो नहीं है, D1 के दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, D2 के मे बी D2 पॉजिटिव, सब बताएगा में। किसका? D1 का कि D1 प्लस D2 का बता रहे, किसका बता रहे? A का बता रहे हैं ना, A का X कंपोनेंट। हाँ ठीक है, ठीक है। तो D1 A का का X, पॉजिटिव, हाँ D1 का पॉजिटिव और D2 का D2 भी का, पॉजिटिव। ओके ठीक है। तो देखो कंपोनेंट देखिए, ओके जस्ट लेट मी गिव यू हिंट, इसको मैं इसका नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सपोज इफ वी टेक दिस लाइक दिस, है ना, अगर हम कोई वेक्टर ये लेते हैं ए, तो उसका A1 कंपोनेंट AX का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा A1, जिसको AX बोल सकते हैं। अगर हम XY नहीं दे रहे हैं, XY एक्सिस के साथ नहीं कोइंसाइड हो रहे, तो हम A1 A2 लिख सकते हैं। तो इसका A2 लिखेंगे ऐसे। तो अच्छा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स x, पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। बट सम कंपोनेंट इज लाइक दिस, सपोज कोई वेक्टर ऐसे है, उसके कंपोनेंट कैसे आएंगे? एक आएगा इधर, एक आएगा इधर, तो ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ चला जाएगा, ये नेगेटिव y की तरफ। वन कंपोनेंट विल बी ऑन वन साइड, अदर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होना चाहिए ऐसे। देखो कंपोनेंट शुड मेक इट, सपोज जैसे ये वेक्टर है, उसका ये कंपोनेंट A1 है, तो दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? दूसरी तरफ, एंड A1 के साथ 90 डिग्री पे आएगा, A2 विल बी 90 डिग्री लाइक दिस, विद A1 इट विल बी 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड, बोथ द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी one side of the vector, one component, suppose ये one component is one side, other component other side, बाद में हम शिफ्ट करते हैं, we are shifting it later for our convenience, but ऐसे होगा, है ना। सपोज कोई सब वेक्टर इज लाइक दिस, ठीक है। तो उसका अगर एक कंपोनेंट हमने ये लिया, एक कंपोनेंट ये लिया A1, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा, ये मेन वेक्टर है लाइक दिस। अच्छा सपोज, ओके चलो इसी को ले रहे हैं, इफ इट, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस को हम छोड़ दें, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्स, इफ वन कंपोनेंट इज दिस वन A1, एक है, तो दूसरा कंपोनेंट किधर होगा? इसके 90 डिग्री, इधर समवेयर इट विल कम समवेयर दिस साइड, A2 will be, so that both the components A1 and A2 will be mutually perpendicular. यहाँ पर we are not talking about x and y axis, we are just, if I give you, देखो सपोज हमने एक वेक्टर, ये वेक्टर है आपका A, इसका मैं बोलता हूँ अगर A1 कंपोनेंट, एक मिनट, A1 कंपोनेंट इज लाइक दिस, तो A2 किधर आएगा? तो ये उसका A1 कंपोनेंट हो जाएगा, A2 विल बी समवेयर दिस साइड, इस तरफ, इसके साथ 90, इतना ऐसे होगा कंपोनेंट। अगर एक कंपोनेंट आपको दे दिया है कि ये है, दूसरा कंपोनेंट इसके 90 डिग्री पे आएगा फर्स्ट कंपोनेंट के साथ। बट यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, कंपोनेंट शुड बी अलोंग द, कंपोनेंट शुड कम अलोंग द एक्स एंड वाई। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया मैंने, तो ओनली आई हैव गिवन यू वन कंपोनेंट A1, तो बी A2 निकालना है, तो इसके परपेंडिकुलर इस तरफ कहीं आएगा। तो लेंथ कितनी होगी, व्हाट यू डू, वहां से टिप से उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, और इसके इस परपेंडिकुलर लाइन पर इधर ड्रॉ कर दो, तो ये A2 की लेंथ हो जाएगी लाइक दिस। तो दिस इज द रूल, है ना। अभी एक्स वाई दिया है, तो हमारा क्या करना है, अभी दोनों का कंपोनेंट, इसका पहले देख लेंगे, एक इधर आ जाएगा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये A1 हो जाएगा, AX हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो AY हो जाएगा, AY मतलब D1, ये D1 है, तो D1 X कंपोनेंट हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट ये D1 Y कंपोनेंट, तो लाइक दिस। अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम है आपको, देखो इसके लिए तो प्रॉब्लम आएगी, ये D2 है, तो व्हाट यू डू, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, ये X हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, एक कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये वाला, इतना, दिस मच, लाइक दिस यू टू थिंक। या फिर इसको शिफ्ट करके ले आओ इधर, व्हाट यू डू, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो, यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ ले आओ, यहाँ से
इसका टेल ज्वाइन कर दो इधर, ये D2 इधर आ गया। अभी देखो इसके कंपोनेंट किधर किधर जा रहे हैं, है ना? या कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पे लगा दो ऐसा, ठीक है। तो सम मोर प्रैक्टिस फॉर कंपोनेंट्स है ना, बिकॉज आगे चल के जब हम फोर्सेस, कभी हमें डिवाइड कंपोनेंट देने पड़ेंगे, फोर्स के कंपोनेंट या फील्ड के कंपोनेंट, तो यू शुड बी comfortable, therefore we are doing the practice. All right, moving on to the next one. Next one is most important topic of this chapter called unit vector. Any idea about the unit vector? अभी तक हम लोग वेक्टर पढ़े थे. Now coming in action is unit vector. So unit vector are those vectors whose magnitude is 1 unit. 1 magnitude क्या होगा? 1, जिसकी लेंथ 1 हो, है ना? And unit vectors are just indicating the direction of original vector. कोई वेक्टर है ना, उसका केवल डायरेक्शन बताते हैं. यूनिट वेक्टर इंडिकेट द डायरेक्शन. एंड हाउ डू वी गेट द यूनिट वेक्टर? किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, देन what we get is called unit vector, and unit vector are represented by this. इसको एरो नहीं लगाना. यहाँ पे देखो a कैप पढ़ेंगे, a हैट. वेक्टर हम कैसे दिखाते हैं? ऐसे. इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? ऐसे. दिस कैन, वी कैन कॉल इट a कैप और a हैट. एरो नहीं लगाते. यूनिट वेक्टर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एरो ड्रॉन onto the alphabets. They are ऐसे. ये जो सिंबल होता है ग्रेटर देन का, उसको टिप ऊपर कर दो, तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप. तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट वी गेट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर ऑफ दैट गिवन वेक्टर. एंड यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है. तो फर्स्ट वील राइट दीज पॉइंट्स, एक एक करके पॉइंट लिखते जाएंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू वंस मोर. देखो चलो, अभी जो बताया मैंने उसको लिख लेते हैं पहले. सी, क्या बताया मैंने? यूनिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1. अगर हम उसका मैग्नीट्यूड निकालें, मॉड निकालें, है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मॉड लेते हैं तो 1 आ जाए, है ना. उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ जाता है तो यूनिट वेक्टर है. 2 आ जाता है तो यूनिट वेक्टर नहीं है वो. 3 आ जाता है तो यूनिट वेक्टर नहीं है. तो फर्स्ट वन इज क्लियर. देयर मैग्नीट्यूड 1 है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर. यूनिट मींस 1. वो जो यूनिट हमने पढ़ी है, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना. यूनिट ऑफ मीटर इज, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, दैट इज 1 मीटर. उसको रिपीट करके हम बिगर लेंथ वी कैन फाइंड आउट. यूनिट मींस बेसिक, यूनिट का मतलब होता है 1. ओके. नाउ यूनिट वेक्टर is obtained when we divide any vector by its magnitude. ये वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड लगा देते हैं. तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? हमें एक वेक्टर मिलेगा. उसके ऊपर हम एरो नहीं लगाएंगे, कैप लगाएंगे, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली. कैप लगा के उसको. गॉट इट? अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो व्हाट वी गेट? a is equal to magnitude of vector multiplied by unit vector. In other words, what we can say, any vector is the combination of its magnitude and its unit vector. Unit vector gives the direction और ये magnitude है. Direction and magnitude को multiply कर देते तो what we get is the vector called vector. इसी को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके I have written like this. Any vector is product of its magnitude and unit vector. Our unit vector is the vector divided by its magnitude. This is the definition. ठीक है. तो कोई यूनिट वेक्टर आपको किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. Shall I explain you some more? देखो, सपोज
सपोज कोई फोर्स है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट का मतलब टुवर्ड्स ईस्ट, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 10 न्यूटन। डायरेक्शन मॉड में क्या होती है, डायरेक्शन हट जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाता है ना। इसका यूनिट वेक्टर क्या आएगा, आई कैप वेक्टर, हाँ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को एफ मॉड लिखेंगे। अभी आई कैप नहीं, अभी आई कैप हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा है उसमें से आंसर देना है हमें, ठीक है। तो नो आई कैप, ओनली थिंग वी आर इंटरेस्टेड इन, देखो अभी डिवाइड कर दिया हमने, तो ये क्या है, ऐसे इसको कैप लगाएंगे, ऐसे जब वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो एफ कैप हो जाएगा। तो एफ कितना है 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट, और ये 10 न्यूटन, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, ईस्ट में गई, डायरेक्शन मिल गई। तो हमने इट इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, तो ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, क्या मिला, डायरेक्शन ईस्ट मिल गया हमें, यूनिट वेक्टर इज टुवर्ड्स डायरेक्शन ईस्ट। मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 इज द यूनिट, और ये डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन, ठीक है। तो दैट्स हाउ यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वेक्टर। तो लेट मी सी दैट पॉइंट आई हैव रिटन डाउन। यहाँ तक क्लियर हो गया। यूनिट Yes, वेक्टर sir. क्या दिखाता है, ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है बस, मैग्नीट्यूड तो 1 है ऑलरेडी डिसाइडेड। एंड let us see what are other important points related to this. All the points you have to write carefully and revise carefully. देखो अभी बाकी पॉइंट क्या है इसके देखते हैं। देखो all other points are very important points, you cannot afford to miss। देखो एक एक करके मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यूनिट वेक्टर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ ओरिजिनल वेक्टर। यहाँ पे हमने देखा ईस्ट, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन दिखा रहा है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन दिखाता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो ऑलरेडी डिस्कस किया। नाउ विद दिस पॉइंट कैन वी से ऑल पैरेलल वेक्टर्स हैव द सेम यूनिट वेक्टर? यस। अभी यहाँ पर हम F1 हमने 10 न्यूटन लिया, F डैश हम 20 न्यूटन ले लें, 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, इसका भी केवल लास्ट में ईस्ट ही बचेगा, है ना। जैसे ये ओरिजिनल वेक्टर है 20 न्यूटन का, तो उसका जो यूनिट वेक्टर F ऐसे आ जाएगा, ये कितना था 10 था, इसका आधा होगा, है ना? इसका भी यूनिट वेक्टर इधर कुछ आ जाएगा ईस्ट की तरफ, है? तो जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका 1 पार्ट है ना, 20 न्यूटन है तो 20 को 20 से डिवाइड करेंगे, 1 उसकी लेंथ 1 व्हाट इज कॉल्ड, एंड डायरेक्शन सेम। तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स विल हैव, अभी कोई भी फोर्स ले लो आप, 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन 50 न्यूटन, जब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, ईस्ट आएगा बस, सभी अगर ईस्ट में है तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स विल हैव सेम यूनिट वेक्टर्स। जितने भी पैरेलल वेक्टर्स हैं दे ऑल विल हैव सेम यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्लियर। नाउ यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, y axis and z axis are indicated by the symbols I cap, J cap, K cap। x axis को हम I cap से रिप्रेजेंट करेंगे, ईस्ट नहीं लिखेंगे उसमें, along the x axis we not write east, and along the y axis we write J cap, along the z axis K cap। So these are the conventions in all the books, same। Moment you find I cap, it means it is indicating, vector is indicating towards the positive x-axis, and so on। Or for example, if we take the 5 Newton force along the y-axis, so how can we write vector f will be equal to magnitude 5 है, unit direction किधर है, along the y-axis, which is represented by j cap। यहाँ पे j cap लिखेंगे और यूनिट विल बी देयर, यूनिट एज इट इज लिखेंगे, जो भी यूनिट है, यूनिट विल बी रिटन एट द एंड। एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस का माइनस आई कैप हो जाएगा,
और नेगेटिव वाई एक्सिस का माइनस के कैप हो जाएगा, नेगेटिव जेड एक्सिस का सॉरी ये जे कैप हो जाएगा नेगेटिव वाई का, और नेगेटिव जेड एक्सिस का माइनस के कैप हो जाएगा। Any doubt so far? These are the points we have written. All are very important. बोले x-axis is represented by I cap और negative x-axis minus I cap, and so on. So these are the most important points you have to remember always for unit vector. This much done. Note कर लो इसको, and you can ask your doubts also. Abhi it is not yet over. Abhi I have to tell you so many points, but what about these points? These are clear. Let me finish, then other points which are coming in your mind can be taken, can be just handled. पहले अभी इसमें बताओ, इसमें जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसमें कोई डाउट? No, sir. Okay, make proper note कर लीजिए, because these you are going to use in the various chapters. Let's see some more points related to unit vectors. देखो सर आपने ऊपर यूनिट वेक्टर के ऊपर जो लिखा है कोई नहीं लिखा। ये लो देख, ये मैं आगे भी लिखा है, इसको मत लिखो अभी, जस्ट ये सब रैंडमली रिटन आगे लिखा है मैंने। I again written, I will show you, उसको छोड़ दो, आगे है, फिर से है वो पॉइंट्स आगे भी है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन, ओके, इसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, देखो इसके छोटे छोटे क्वेश्चन बना के लिखे मैंने। इन प्लेस ऑफ राइटिंग द पॉइंट्स आई आस्क यू इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चन। देखो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ आई कैप एंड मॉड ऑफ माइनस आई कैप? बोलो क्या होगी वैल्यू इसकी, क्या आंसर होगा? सर दोनों का 1 होगा। क्यों 1 होगा? y1, ओके 1, y1 बिकॉज सर यूनिट वेक्टर्स है तो फिर Yeah. मैग्नीट्यूड 1 ही है। Yeah, correct. Since they represent the unit vectors, and all unit vectors का magnitude 1 होना चाहिए, तो 1 है दोनों का। I cap is similarly j cap भी 1 हो जाएगा, minus j cap भी 1 हो जाएगा। तो since they are unit vector, their magnitude should always be equal to 1. Clear? ऐसा नहीं लिखना है, ओके सर इसका I cap, इसका भी I cap, है ना? माइनस मैंने बोला था माइनस हटा देना, माइनस हटा दिया, बट उसका कॉमन सेंस से भी हमें ये भी तो पता होना चाहिए वो यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 है। डोंट आस्क मी सर आई कैप कहाँ चला गया। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट बताइए, डज द यूनिट वेक्टर हैज यूनिट? Can you tell me unit So it vector का will यूनिट take the होगा? unit of any vector, it's the unit vector of। नहीं, मैं क्वेश्चन देखो, आई एम आस्किंग यू कि यूनिट वेक्टर का यूनिट होगा क्या? जैसे यूनिट क्या होता है, लेंथ का मीटर, है ना, मास का। तो माय क्वेश्चन इज नाउ, डज द यूनिट वेक्टर हैज यूनिट और डायमेंशन? और डायमेंशन यूनिट है तो डायमेंशन हो सकता है, कभी कभी यूनिट होने से डायमेंशन नहीं होता, ऐसा भी होता है। यूनिट तो है, जैसे एंगल का यूनिट तो है रेडियन, बट डायमेंशन नहीं होता। ओके, बट लेट अस फोकस ऑन द यूनिट पहले, बाद में डायमेंशन बाद में देखते हैं।
बोलो हाउ मेनी ऑफ यू फील यूनिट होगा? होगा क्या यूनिट? बताओ। नाम Sir, it यूनिट will वेक्टर है. take the unit of the vector. Okay, it means yes. And you mean to say yes, it has a unit, है ना? Different vector की different unit vector की different units होगी. Okay, this is the first answer coming. You mean to say that only, na? Yes, sir. Okay, any other answer? Yes or no? Quick, देखो क्या आंसर? Yes or no? If no, then you have to prove it. No. Yes के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ प्रूव करने के लिए, पर no के लिए प्रूव करना पड़ेगा. अरे ऊपर अभी हमने लिखा तो था. If you must have seen, ऊपर जो मैंने लिखा है उसी में आंसर है. चलो फिर से देखते हैं. जो ऊपर मैंने लिखा था ना एक्स्ट्रा में, देखो यहाँ पे भी लिखा है, उसको देखो कहाँ चला गया. नहीं, आई हैव टू राइट अगेन. देखो ऊपर मैंने क्या लिखा था, लेट मी राइट अगेन. ओके, एनीबडी गॉट आंसर और नॉट? बोलो किसी का आया क्या? लिख के देखो, पता लग जाएगा. यूनिट वेक्टर निकाल लो. जैसे मैंने लिखा था ना, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन ईस्ट, ऐसा लिखा था. तो उसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर डिवाइड किया, तो क्या आया था बोलो? यूनिट आल्सो गॉट कैंसल्ड. देखो यहाँ पर, लेट्स सी दैट ओनली. कहाँ चला गया? हियर देखो, ये ये वेक्टर लिखा है F 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट. मैग्नीट्यूड में तो यूनिट होगा, डायरेक्शन जाएगी मैग्नीट्यूड में, यूनिट नहीं कैंसिल होता. एक कैंसिल हो गया, ईस्ट बच गया. नो यूनिट नो डायमेंशन. ठीक है, तो यहाँ पे पहले आंसर लिखते, फिर से रिपीट करते. नो यूनिट and no dimensions. For example, let us write it that point again. This point is not there in the book, but you have to think your own. Books में ना तो ये क्वेश्चन है, ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आया अभी तक. It is never asked, but you should be ready. These type of questions can be generated and given to you. No unit and no dimensions. Dimensions. Dimension की स्पेलिंग ठीक से लेना. तो फॉर एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल लिख लेते हैं. फोर्स इज 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट. मॉड कितना हो जाएगा इसका? 10 न्यूटन. डायरेक्शन है की मॉड में. देयरफॉर एफ कैप इज वेक्टर एफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन ड्यू ईस्ट अपॉन 10 न्यूटन. तो ईस्ट बच गया. दैट्स ऑल. नो यूनिट. यूनिट कैंसिल हो गया. 10 न्यूटन न्यूटन गॉट कैंसिल. मैग्नीट्यूड आल्सो गॉट कैंसिल. कन्विंस्ड? बोलिए. अरे देर तुम लोग हो लाइन पर. Yes, sir. ठीक है. When you go to the higher education, suppose you go for IIT or your NEET, so these questions are generally professors are asking this question only. When my son went for IIT का first year में, so he was asked this same question. Professor asked, does the unit vector has the unit? So because it was discussed in the class, so he could reply. Other students could not reply because these things are not generally overlooked generally, है ना? क्योंकि ये you have to think your own. So he could reply yes, it doesn't have unit. Or you can just quickly calculate. You can find out फटाफट उसको लिख के देख सकते. So these are the points can be asked in examinations also. आगे देखेंगे. नोट कर लो उसको. Just we have some more time. We can just use that. So still so many points are remaining. अभी unit vector will continue with the unit vectors only. But बीच में एक point और है magnitude का. We will do that and then again come back to unit vector. In first year of your JEE and NEET and all,
physics is again taught there. If you just retain these things, they will be useful there. And of course, without this, you cannot correct the examinations. And if you don't know these things, it will be difficult for you to get through the entrance examination. चलो आगे देखें. Noted. देखो वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर. सपोज ये वेक्टर है ए इन द एक्स वाई प्लेन. दिस इज एक्स एंड वाई. ठीक है. तो उसका ये कंपोनेंट कितना आएगा? ए एक्स आ जाएगा. विच विल बी कितना होता है बाय द वे? हाउ मच इट वाज? ए cos थीटा. वो हम नहीं लिख रहे हैं अभी. जस्ट वी आर राइटिंग ए एक्स एंड ए वाई. तो ए एक्स इज अलोंग द एक्स एक्सिस. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? आई कैप. ए वाई is along the z-axis, along the y-axis. So y-axis का unit vector क्या है? J cap. So we can write vector like this. Clear? First we are discussing in 2 dimension only. बाद में K cap also will introduce later on, not now. Let the things be simple. उसको simple रखते हैं थोड़ा. So I told you in xy plane. इस प्लेन में है ये वेक्टर. Now, how to get the magnitude of this vector? Magnitude of this vector, ये जो है particularly magnitude when the vector is given in terms of I cap j cap. तो इसका magnitude कैसे निकालेंगे? We know this ax and ay. चलो देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. यू शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दीज पॉइंट्स. नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. ये जो वेक्टर है विच इज गिवन इन दिस फॉर्मेट, आई कैप जे कैप के फॉर्म में है. इसका मैग्नीट्यूड कैसे होगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स? कंपोनेंट के टर्म, ये कंपोनेंट है ना. तो देखो, सिंस वेक्टर इज रिटन लाइक दिस, वेक्टर को हमने ऐसे लिखा है ना. तो इफ भी ये क्या है? उसका बेस हो गया, ये ट्राइंगल है ना. और ये अपोजिट साइड हो गई और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. इफ वी स्क्वायर इट एंड इसको भी ऐड कर दे, इफ वी मेक ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और उसका अंडर रूट लें तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, ए आ जाएगा. फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, इफ यू सी केयरफुली, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज 90 डिग्री एंगल. तो ए एक्स स्क्वायर plus ay square will give you a, which is the hypotenuse. Clear? Are you convinced? If magnitude of this, if vector is given like this, its magnitude has to be this, because ax and ay are the mutually perpendicular components है. तो इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हाइपोटेन्यूज मिलेगा. दैट इज नथिंग बट ए लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड. आई मीन लेंथ ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. Or you can do it like this. Ax is what? A cos theta, ay is a sin theta. इनको स्क्वायर कर दो. ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. sin and cos components they added together will be square of that will be 1. तो यहाँ पे a मिल जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे. This will be ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर. You can do it that way also. But it is simple. Let us keep it simple. By the diagram itself, you can see ax square plus ay square is a square. ठीक है. तो what we have learned here, देखो मेन पॉइंट क्या है? अगर वेक्टर इस फॉर्मेट में है तो i का जो कोफिशिएंट है ax, उसको स्क्वायर करना है और j का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना है, उसका अंडर रूट लेना है. It is equal to a, which is nothing but according to the अपना पाइथागोरस थ्योरम से भी सेम आता है. यहाँ पे हमने क्या किया? देखो i का कोफिशिएंट को स्क्वायर किया, j के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड किया, उसका अंडर रूट निकाला, तो हमें वेक्टर मिल गया. एंड दिस इज नथिंग बट ए, दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डायग्राम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. तो if
ये दोनों पॉइंट क्लियर है आपको? वेक्टर को हम आई कैप जे कैप के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड भी उसकी कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट लेंगे तो हमें ओरिजिनल वेक्टर का लेंथ मिल जाएगा या मैग्नीट्यूड मिल जाएगा ओरिजिनल वेक्टर का, एक्चुअल जो वेक्टर है। बुद्ध पॉइंट सर क्लियर बोलिए। वेरी सिंपल है ये, जस्ट तुम्हें देखने से ही समझ में आनी चाहिए। नाउ सपोज if a third component is also there, ये इस वेक्टर को थोड़ा सा हमने क्या किया, ए को थोड़ा आगे शिफ्ट किया है ना, इसको एक्स वाई प्लेन से बेंड कर दिया थोड़ा। इफ यू ब्रिंग इट दिस साइड, ऐसे जैसे ये था, जस्ट लेट मी गो बैक टू दिस डायग्राम, 3D डायग्राम। कहाँ पे था वो, पीछे है, कंपोनेंट पढ़े थे ना हमने लॉन्ग बैक। ओहो, बहुत पीछे। ये वाला ना, if you just detach it from the xy plane, थोड़ा आगे ले आओ इधर, तो it will have that component also, k cap component also। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, वेक्टर ए विल बी, जनरल फार्मूला विल बी ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप विल बी इक्वल टू द वेक्टर। वेक्टर के थ्री मैक्सिमम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं व्हिच कैन बी अलोंग द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इसके साथ आई कैप आएगा, इसके साथ जे कैप, इसके साथ, तो मैक्सिमम 3, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मैक्सिमम 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो जनरल फॉर्म आई कैप जे कैप के कैप के टर्म में हो सकती है। क्लियर? गोइंग बैक टू द सेम पॉइंट अगेन, ऑलराइट, तो उसी पॉइंट पे चलते। तो जनरल it can have 3 rectangular components। okay, you can see together again, यहाँ तक देख सकते हैं। yes, तो उसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। can you see it now? so it can be ax I cap plus ay j cap plus az k cap। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तीनों म्यूचुअली राइट एंगल पे है ना, तो ऐड होके हमें बॉडी डायगोनल देंगे। दिस विल बी बॉडी डायगोनल। रूम का, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योर रूम ओनली। सामने का जो लेफ्ट कॉर्नर है नीचे का, और तुम्हारे बैक का जो राइट कॉर्नर है, वहां तक का एरो ए होगा, विच विल बी नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है। दैट्स हाउ मैग्नीट्यूड इज फाउंड आउट। क्लियर? just we'll wind up into just 2-3 minutes, क्वेश्चन दे दो इसके, then we are going to wind up। no problem, if you have any doubt you can just clear। 3 dimensional ऐसा होगा, maximum 3 components, rectangular components। done। quickly बोलिए, just time is going to be Yes, over। sir. तो इसके क्वेश्चन देखो, अभी ये सब सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये है, दिस इज द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। कैन वी यूज दिस फार्मूला? यस, वी कैन यूज दिस फार्मूला। दिस इज द वेक्टर I cap plus 2j cap minus 2k cap, find the magnitude of vector A, you can use this formula। बोलिए कितना आ रहा है? How much? अरे देर तुम लोग हो लाइन पर, or something has gone wrong? So 3. Yeah, 3 is the magnitude, correct।
मैग्नीट्यूड 3 आएगा, देखो ऐसे करना, इसको भी जो जो अपना माइनस है ना, बी केयरफुल, उसको माइनस बाहर, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है, ये प्लस है, उसको माइनस को ब्रैकेट में लेके स्क्वायर करना है। क्लियर? Clear to everyone? Simple things are Yes, going sir. on. And if you have doubt, you can ask. Now, shall I give you homework question based on this unit vector? ये एक पहला homework है. It can be important question. ये जो है competitive level का question है ये. Excuse me, sir. या एक मिनट है, हाँ बोलो, बोलिए. Sir, I'm from class 12. Can you shift me? No, shifting is not possible. Sending. Thank you, Okay, ma'am. मैं विद्या. Okay. तो this is the homework number 1. Homework next homework जो पहले दिया था उसके बाद. ये वेक्टर दिया, वेलोसिटी दी हुई है आपको. If velocity of object is given by this relation, find magnitude of velocity. अच्छा, magnitude निकल, ये तो simple question, इसमें nothing is there. Similar to this one, I thought next one. ठीक है, calculation practice only. Just note down quickly. Done? Noted? बोलिए जल्दी जल्दी. अरे देर तो ना हो. हाँ यस. ओके, तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है. ओके, एक मिनट, ये तो ये भी होमवर्क क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते. देखो ये क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसका सेकंड पार्ट बताइए. फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए. हु विल टेल? बोले. let me add the page here. हाँ, मैंने, हाँ बताइए. इसका फर्स्ट पार्ट मैग्नीट्यूड डन. सेकंड पार्ट फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. बोलिए क्या आंसर होगा. I cap by 3 plus 2 by 3 j cap minus 2 by 3 k cap. व्हाट डिड यू डू? सर उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर. हाँ, ओके. डेफिनेशन क्या है यूनिट वेक्टर की? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो वेक्टर इज ऑलरेडी गिवन, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप है. मैग्नीट्यूड इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस. ये क्या है? ये आपका मैग्नीट्यूड ही है ना. ये सिंबल जो है, either you write a or mod of a, both are same. Magnitude is calculated 3. That's all. इसको ऐसा लिख सकते हैं, जस्ट चलो अलग अलग करके लिख सकते हैं. यस, 1/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप और माइनस 2/3 k कैप. That's all. Either you leave it like this, no problem, or you can write it like this also, no problem. Okay, that's all. तो ऐसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं. पहले क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, फिर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. जो वेक्टर आएगा, ये वेक्टर है कि नहीं? यूनिट वेक्टर क्या बताता है? इसका डायरेक्शन बताता है. तो ये आपका यूनिट वेक्टर है. अगर वो एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप ही रहेगा, बट इट इज जस्ट इन, इट हैव सम कंपोनेंट इन एक्स एक्सिस, वाई कुछ एंगल पे होगा, समथिंग लाइक एंगल. It has all the 3 components, but it is unit vector because we have done it according to the definition. Now, clear? बोलो, सबको समझ में आ गया ये यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सिंपल है वैसे तो, बट फिर भी you should be convinced properly. अभी भी कुछ डाउट्स होंगे, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट्स क्लियर होंगे आपके. यहाँ पे मैं केवल ये पूछ रहा हूँ. इट इज ओके, दिस मच इज ओके. Yes, sir. Anybody has any doubt कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? लेट मी टेल यू अगेन. मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा भी हमने ऊपर ये फार्मूले से. मैग्नीट्यूड निकाल लिया और उसकी जो डेफिनेशन थी यूनिट वेक्टर की, वो फार्मूला लिखा.
तो उसमें वैल्यू पुट कर दी और बस सिंप्लीफाई करके लिख दिया। नाउ लेट मी गिव यू 2 more क्वेश्चंस ऑफ यूनिट वेक्टर। एक तो ये है, ये तो हो गया ना, ये वाला देखो, आपको ये वेक्टर दिया हुआ वेक्टर है -3 i कैप -4 j कैप, तो इसको ड्रॉ भी करना है। यू हैव टू ड्रॉ ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, पहले ड्रॉ करके दिखाना है, इसको ड्रॉ करके भेजना है आपको। कैन इट बी ड्रॉन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर इसको आप ड्रॉ करोगे आई थिंक थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये ना। तो मेरा क्वेश्चन है कैन इट बी ड्रॉन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस और नो, यू हैव टू राइट। एंड देन फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड अभी हमने ऊपर निकाला था सिमिलर वे, एंड फाइंड द यूनिट वेक्टर सिमिलर वे, अभी ऊपर निकाला। एंड ठीक है, इसका जो 5th पार्ट है वो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, वो कल डिस्कस करेंगे। 5th पार्ट इज नॉट गिवन नाउ टू यू। या 5th पार्ट देख तो लिखा है क्या मैंने, पहले ये नोट कर लो चलो। ओके दैट्स ऑल, आई नो मोर पॉइंट, दैट्स ऑल। यहाँ पे मैं एंड कर देता हूँ, ज्यादा इसको नहीं लेता, कल देखेंगे बाकी पॉइंट्स। Okay, sir. Take the note or take the pick of this, and that's all from my side. If anybody has any doubt, can ask. Thank you, sir. Others can leave. जिनको doubt नहीं, they can just leave. Okay, thank you, sir.